आइए मनाते हैं। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। कोरोना मामले में सुधार को देखते हुए देश भर के कई राज्यों में लॉकडाउन में आंशिक छूट दी जा रही है। 50 दिनों के भीतर देश भर में कोरोना के सबसे कम नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बावजूद बहुत जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम कोविड से जुड़ी हर सावधानी का पालन कड़ाई से करें। कोविड संक्रमण के नए लक्षणों को कैसे समझें, वैक्सीनेशन क्यों अपनाएं और क्यों अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। कोविड से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फोन लाइंस आपके लिए खुल चुकी है। फोन नंबर मैं आपको बता देती हूँ 0112338731। इस नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो देर मत करिए, लगाइए फोन। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे साथ इस पूरे प्रोग्राम में रहेंगे मेरे सहयोगी गौतम। Shukriya, Rama. The thing is that we have been bringing to our viewers throughout the course of this pandemic the opinion of experts, doctors themselves in the field of COVID, and all your health related queries we've been raising with them, whether they're COVID related or not. But more so, we've seen as the issues have moved forward, there are questions related to not just general health and how to take care of COVID patients and how to behave around COVID patients and even in general, but also related to vaccination, and all those questions are still quite relevant. So do feel free to raise them with us. As Rama mentioned, the phone number, it is there at the bottom of the screen as well, flashing intermittently, and also on our Facebook Live page. Let me introduce to you our experts for today. For this edition of Dr. Speak, we've got Dr. Suryakant, Head of Department Respiratory Medicine and member Corona Task Force, KGMU Lucknow; Professor Dr. Manish Mandal, Medical Superintendent, IGIMS, Patna; and Dr. Bikram Chaudhary, Additional Professor, Department of ENT at the All India Institute of Medical Sciences in Jodhpur. Dr. Bikram Chaudhary is with us, as you can see on the screen. Good afternoon to you, Dr. Chaudhary. What do you make of the situation now when we see that, as far as daily new cases are concerned, it's the lowest number that has come in 54 days, 1.27 lakh, and accordingly all the other data is also changing, showing an improvement, which is leading to different states relax restrictions, lockdowns as you call them, or corona curfews. How do you see the situation progressing from here if things remain the way they are? How soon can we declare that we're out of this second wave? Now, the second wave, out of the second wave, it is a very difficult question to answer, and we are still riding it as of right now. The part of the question that you asked me regarding the lockdowns earlier, the lockdown is basically another way of enforcing social distancing, and that is something we have to practice in any case. So if we relax the lockdowns, that is, we basically stop enforcing social distancing, the chances of a coronavirus outbreak or its increasing numbers or its rapid progression into a increasing spike in the second wave will again occur. So we are not, as a human beings per se, are not extremely disciplined about these things. And in spite of the coronavirus pandemic having been there for more than a year now, still people do not actually actively do social distancing moment it is not strictly enforced by the government. So regarding the lockdown, yes, moment the states go off lockdown, the numbers will gradually increase. However, whether the wave will go away or not, or whether the numbers will completely go off or not, these are all predictions, and they are only based on models which we cannot actually consider to be true. Only time will tell. Right. So that is how things stand at the moment. But in terms of the kind of data that we're getting now, how the active caseload has come down, it's below 20 lakh after 43 days. That is one encouraging sign. Recovery rate is also going up. What does that really indicate in terms of the progression of the second wave? Do you feel that this is something that will then lead us to a situation where people, at least with some degree of assurance, will be able to step out of their homes if they are following the COVID protocols? Because right now people still want to stay within the confines of their homes.
Well, that was a big if you mentioned just now. That if they follow COVID protocols, yes, if they follow COVID protocols, obviously things will go down, numbers will go down, life will be much better off for everybody. But that following of COVID protocols is the most essential component of what you just mentioned. Now, these COVID protocols, everybody knows about hand washing, sanitizing, social distancing. Everybody knows about it. It's been broadcast on your channel many times. Every luminary who has come, every dignitary who has come on your channel has come and told you the same thing again and again, told people the same thing again and again. Follow the protocols, follow the protocols. Now that's the key word. If they follow protocols, definitely the numbers will go down. Definitely we'll have much better responses and much lesser number of cases coming. Life will go back to a new near normal. But then that's what the thing is. COVID protocol following that's a problem we are facing across the board. In fact, across the world, people just do not want to follow protocol. Let me put it another way. Many people don't want to continue following the protocol. And that leads to these sudden rapid spikes. And these will continue to happen as the virus is evolving. This is mutating pretty much, that we can see, like the second wave came across by a new mutation. बिल्कुल डॉक्टर विक्रम आपने बताया कि प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो इसका सीरियस इम्पैक्ट है, जो इसके विशेष प्रभाव हैं, उनसे बचा जा सके। हमारे साथ दो अन्य डॉक्टर भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रोफेसर मनीष मंडल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे, एक राहत की बात ज़रूर आती है जब सबसे कम केस आते हैं और जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से डॉक्टर विक्रम चौधरी ने कहा कि बहुत ज़रूरी है जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहें। हालांकि लोगों में घबराहट भी थी, तो इस घबराहट को दूर करने के लिए आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे और किस तरह से कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनका उनके विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। हमें घबराहट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अनुशासन की ज़रूरत है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। देखिए, वायरस के सर्वाइवल के लिए उसके सामने भी बड़ी चुनौती है, उसके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। वायरस के सर्वाइवल के लिए चाहिए उसको चेन कंटिन्यू करना, नंबर एक बात। उसको चाहिए कि उसको लाइव होस्ट चाहिए उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। जब तक उसको लाइव होस्ट नहीं मिलेंगे, जब तक उसकी चेन चलती रहेगी, तब तक वो सर्वाइव करेगा। न सिर्फ सर्वाइव करेगा, but he will continue to have different type of mutants and variants. उसको अपना सर्वाइवल के लिए, उसकी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, उसके अपने म्यूटेंट यानी स्वरूप बदलने के लिए उसको एक ही चीज चाहिए, और उसको चाहिए बदलते हुए होस्ट, बहुत सारे होस्ट। यानी होस्ट, लाइव होस्ट जब तक मिलते रहेंगे, डेड बॉडी नहीं। डेड बॉडी जो मर गया बेचारा, वो तो मर गया, उसकी तो ऑफकोर्स क्षति अपूर्णी है, लेकिन उसको डेड बॉडी नहीं चाहिए, उसको चाहिए लाइव बॉडी चाहिए, लाइव होस्ट चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा चाहिए, 1, 2, 4 बड़ी संख्या में चाहिए। तो ये चेन अगर हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ये चेन अगर हम रोक लेते हैं, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हमारा बिहेवियर डिसिप्लिन रहता है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बना रहता है। अब ऐसा ना हो कि इतने दिन से हम लॉक में नहीं मिले और अनलॉक जैसे ही खुले तो हम एक दूसरे का हाथ पिलाने लग जाए। 15 मिनट तक हाथ ही मिला रहे हैं, कब के बिछड़े जैसे पिछले कुंभ में खो गए थे हम। तो इस तरह का बिहेवियर हमें नहीं करना है। हमें मिलने पे अभी भी नमस्ते करना है, हाथ धोते रहना है, क्योंकि हम हाथों से डिफरेंट सरफेसेस को छूते हैं। कभी टेबल छूते हैं, कभी चेयर छूते हैं, कभी कंप्यूटर छूते हैं, कभी लैपटॉप छूते हैं। तो हमें इन्फेक्टेड फोमाइड से इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो इसलिए हम हाथ धोते रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो ये मान के चलेंगे कि या तो इन्फेक्टेड फैलो हमें मिल रहा है या इन्फेक्टेड एरोसॉल मिल रहा है। तो दोनों के लिए हम 2 गज की दूरी बनाते रहेंगे और मास्क लगाते रहेंगे। तो इस तरह से अगर हम अपने को वायरस होस्ट बनने से बचाते रहेंगे तो संख्या कंट्रोल होती रहेगी, संख्या कम होती रहेगी, चेन टूटती रहेगी, और हो सकता है कि हमारा फास्ट वैक्सीनेशन हो जाए तो हमें फिर थर्ड वेव को ना सामना करना पड़े, हम इसी वेव के बाद पूरी तरह से कोविड को कंट्रोल कर लें। इसके अलावा जिस तरह से अलग अलग म्यूटेशंस की आपने बात कही है, बदलाव की आपने बात कही है, तो उसको लेकर भी बहुत से ऐसे केसेस देखने में आए हैं। ऐसे में मेरा सवाल था कि किस तरह से जो फर्स्ट स्टेज है उसी पे आदमी अलर्ट हो जाए और उसी पर अपना जो मेडिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट वीडियोस देखकर सेल्फ मेडिकेशन भी शुरू कर देते हैं, तो मेडिकेशन उनका किस तरह से होना चाहिए, डॉक्टर की सलाह उन्हें कब लेनी चाहिए और किस तरह से इस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए? देखिए, 2 तरह का हमारे देश में सिस्टम है।
एक जो अर्बन सिस्टम है वहां पे डॉक्टर आसानी से अवेलेबल है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन आसानी से अवेलेबल है, वहां पर सेंसिटाइजेशन, एडवोकेसी, ये सब बहुत है। लेकिन एक जो रूरल सिस्टम है हमारा, वहां तो हमें एक डिजिटल कनेक्टिविटी का सिस्टम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आशा वर्कर को अगर हम एक गांव दे देते हैं तो आशा वर्कर विल रिप्रेजेंट दैट विलेज, और उसकी कनेक्टिविटी डॉक्टर से होनी चाहिए, और उसको डॉक्टर की कनेक्टिविटी के साथ जो उसका एडवांटेज है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो गांव वालों को मिलना चाहिए। अब देखिए, रूरल एरिया है, 6 लाख 7 लाख से ऊपर हमारे देश में गांव हैं। कहाँ आप हर गांव में टेस्टिंग को अवेलेबल करा पाएंगे? कहाँ हर गांव वाले को ये आप सेंसिटाइज कर पाएंगे कि देखिए ये सिम्टम जो होता है वो कोविड का सिम्टम होता है। हालांकि इस वेव में तो कोई भी नया सिम्टम है वो कोविड का सिम्टम है। तो गांव वालों की एक मॉनिटरिंग के लिए, एक अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है जो मैंने डिवाइस की है कि भाई गांव वालों का कोई भी सिम्टम हो और ऑक्सीजन 94 से नीचे डाल लो, तो आप मान लीजिए टेस्टिंग हुई हो या ना हुई हो, आप मान लीजिए कि ये प्रिजम्पटिव कोविड है। हमारी गवर्नमेंट ने भी प्रिजम्पटिव कोविड डिफाइन किया है कि सिम्टम तो कोविड के हैं, लेकिन जांच या तो हुई नहीं है या नेगेटिव आई है, इसको हम प्रिजम्पटिव कोविड कहते हैं। तो आशा और ये जो एएनएम वर्कर्स हैं, इनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर जो पीएचसी पे है उससे कनेक्टिविटी डिजिटल रखनी पड़ेगी, और उनको ये समझाना पड़ेगा कि भाई आप गांव में जाइए, कोई भी सिम्टम सजेस्टिव वाला आपको मिलता है तो उसका पल्स ऑक्सीमीटर केवल टेस्ट करिए। आप सबका आरटीपीसीआर कर नहीं सकते, क्योंकि गांव में आरटीपीसीआर आपने किया भी तो रिपोर्ट तो 5 दिन बाद आने वाली है, तब तक तो वो डिसीजन हो जाएगा इधर या उधर। आपने एंटीजन टेस्ट किया तो उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव वैल्यू है, तो yes, that is a very important and essential parameter that you're prescribing, Dr. Suryakant, in terms of how to determine, in the case that an immediate COVID positive or negative report is not available, that oximeter be used, and if the pulse oximeter, the oxygen level is less than 94, perhaps that patient should be treated as a COVID patient. We've got some questions coming in on Facebook as well, on our page there, and let's bring in Dr. Mandal as well, Dr. Manish Mandal, Medical Superintendent, IGIMS Patna. Dr. Mandal, some queries related to vaccination. Swati Joshi wants to know, can a person be given vaccine when it's running 18 years of age? 18 plus can be given vaccine without any fear. Below that, the trials are still going on. So anybody who is 18 plus can take any vaccine, whatever is available to them at their place, and there should not be any denial by anybody. Right. We have more questions. There's no point in disapproving it. Okay. We have more questions related to vaccination. Khan Rishad Khan wants to know, can a hemophiliac, a patient of hemophilia, can that person be given vaccination? Dr. Vikram Chaudhary, if you could respond. That's a fairly easy one, because hemophiliacs per se will not bleed so much if their hemophilia is under control. That is, they're getting regular treatment for their hemophilia. So in that case, you can straight away go in for the jab. There is nothing stopping you from getting a jab if you're a hemophiliac who's under control. Now, a person who's known to be a hemophiliac, who's not taking any medication also, there shouldn't be an issue. A single jab shouldn't be a problem. However, of course, it's the best thing is to consult your doctor, the treating doctor, who will then guide you according to his knowledge of your status of the hemophilia, whether it's under control, whether the coagulation profile is normal or otherwise. And even if it is abnormal, that can be normalized with appropriate treatment, and then the jab can be given. Okay. We've got more questions, in fact, related to vaccination. Ramnees Mishra wants to know, can an asthmatic person take the vaccine? And asthmatic person is one in a comorbid condition. So, Dr. Suryakant, that is also quite an easy answer for you to give, isn't it? Pardon, I couldn't understand the question. The question ये है कि क्या जिनको दमा है, asthma, a person with asthma, can that person take a vaccine? Yes, patient of asthma or any chronic respiratory disease, they can be vaccinated provided they have well-controlled asthma. On the day of vaccination, they should not have acute attack of asthma. That is the only rider. Otherwise, if you are taking inhalers regularly, their asthma is controlled, they can take the vaccination, no problem. बिल्कुल, और आपसे सवाल हम लेते रहेंगे। इसी बीच हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़ गए हैं। मनोज दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा भतीजा है 20 ईयर ओल्ड और 23 ईयर ओल्ड है। उन्होंने वैक्सीन ली थी कोविशील्ड 10 मई को, और आफ्टर 12 आवर्स या 13 आवर्स फीवर हुआ था। 101 से लेकर 103 तक रहा था।
तो और साथ में उनको मिड नाइट में ये हुआ था कि SpO2 लेवल उसका 80 आ गया था और थोड़ा सा चेस्ट में भारीपन सा ऐसा महसूस हुआ उन्हें। तो ये फ्यू मिनट्स के लिए रहा। उसके बाद फिर उन्होंने चेक किया तो 88 आ गया था और मॉर्निंग में 92 93 आ गया था और उसके बाद आफ्टरनून के बाद 94 95 फिर रहा। तो फिर 95 16 मिनट उसके बाद नॉर्मल हो गए। तो मुझे जानना था कि ये कोई इश्यू तो उनको नहीं हुआ होगा कार्डियक रिलेटेड या कुछ ऐसा, क्या वो फिर सेकंड डोज अपने लेने के पहले उन्हें क्या करना चाहिए, सेकंड डोज लेना सेफ रहेगा, जानना। बिल्कुल डॉक्टर विक्रम, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? जी, फर्स्ट डोज के बाद जो आपके छोटे ये सिम्टम्स आए थे, इट कुड हैव बीन स्मॉल साइड इफेक्ट्स, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ये थे, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगला डोज जरूर ले सकते हैं क्योंकि ये भी जो आपके साइड इफेक्ट्स थे ये डायरेक्ट, हम श्योर नहीं है कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप था इसका वैक्सीनेशन के साथ या नहीं। तो हो सकता है इंडिविजुअल को थोड़ा सा कोई नॉर्मल URTI हुआ हो, थोड़ा नॉर्मल जिसे कहते हैं वायरल फीवर हुआ हो। हालांकि आज के दिन में हम कोई भी फीवर जो होता है उसको कोविड ही अंडरस्टैंड करते हैं, ना कि अदरवाइज, बट फिर भी हो सकता है, लेकिन अनलाइकली है कि ये कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट था वायरस वैक्सीन का। तो सेकेंड डोज आप सेफली ले सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। बिल्कुल, और इनके जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है और वैक्सीन लेने के बाद उन्हें कुछ सिम्टम्स आए हैं या कुछ इस तरह की परेशानियां आई हैं, उन्हें किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को विशेष रूप से अपने दिमाग में रखना चाहिए और क्या कुछ उनके लिए और किया जा सकता है अगर उनकी ये जो परेशानी है आगे बढ़ती है, किस तरह से इन्हें भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डॉक्टर विक्रम। हाँ, देखिए बेसिकली ऐसा है कि हर वैक्सीन के कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स है जो कि अंडरस्टूड है, हमें मालूम है, और ये हल्के कुछ लोगों में होते हैं। ये अपने आप ही 24 घंटे के अंदर अंदर, 12 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। अगर ये सिम्टम्स जो नॉर्मल है, हल्का बुखार, हल्का सा पेन, लोकल पेन, ये सारी चीज़ें अगर होते हैं, थोड़ा सा अगर ये एस्थमेटिक नहीं है या कोई एलर्जी नहीं है इनको जिसके लिए उनको इमीडिएटली इमरजेंसी इंजेक्शन की ज़रूरत हो, तो ये सारी चीज़ें तो छोटी चीज़ें हैं, इनके लिए कोई घबराने की बात नहीं। आप अगला वैक्सीन का डोज सेफली ले सकते हैं। और अगर आपको जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वैक्सीन के, जैसे कि आपको इस तरीके का एलर्जी है जिससे कि आपको जो कहते हैं वैक्सीन पेन या कभी इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन इंजेक्शन लेना पड़े, ऐसा अगर कुछ आपको सीवियर एलर्जी है, तब ही आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो वैक्सीनेशन के लिए। स्ट्रेट कट यही प्राइमरी एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी सारी चीज़ें हल्की हल्की छोटी छोटी तकलीफें होती हैं जो कि थोड़ा सा लगता है कि 10 लोगों को कंप्लेंट हुआ, लेकिन 10 लोग ही पूछते हैं इसके बारे में, तो लगता है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई है। तो बहुत ही कम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, और जो होती भी है वो काफ़ी कम उन्हीं को एक्चुअली हमने देखा है एक्चुअली सीवियर प्रॉब्लम होते हुए, जिन्होंने एलर्जी रहने के बावजूद उन्होंने वैक्सीनेशन ले ली है। तो सेफली सेकेंड डोज ले सकते हैं ये सारे लोग। Okay, we have more questions coming in. Shrishti Jagyasi wants to know that her father was COVID positive in the month of April. He was under home quarantine in Chennai and now he wants to come to her place. And she's asking if he could be a carrier of COVID, and do we have any threat of COVID from him, and what precautions do we need to take if her father visits her, who was a COVID patient in April but is now okay. Dr. Suryakant. We're unable to hear you, Dr. Suryakant. Have you pressed? Can you repeat the question in short? Yes, the question was that her father was COVID positive in April, but he's now free of COVID. She just wants to know, can he visit her without any risk of, the infection being carried with him to their place? Oh, no, actually, even after the COVID positivity, if the symptoms have gone, the virus shedding can occur for weeks together, but it doesn't mean that infectivity is there. So he is no more infective and cannot spread the virus to others. So he should be considered as a non-infective, even the report comes to be positive.
So don't consider after 28 days, if the symptoms are not there, so the whole cycle is of only 20 days only. If the after 28 days of the COVID cycle, if there is no symptom, means patient is non-infectious. बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं। ओमकार जी हमारे साथ बांका से जुड़े हुए हैं। जी ओमकार जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, सवाल यही पूछना था कि हम आज इंजेक्शन लिए। हेलो जी जी, सुनाइए, बताइए। हम इंजेक्शन लिए, कोई टेस्ट उस्ट किया नहीं। देहात में जो है रजौन से भी 5-7 किलोमीटर अंदर में रखा है स्कूल में जी। आपने टीका लगवाया है? उसके बाद कहीं कोई भी तरह का फैसिलिटी वगैरह सब नहीं है और जांच भी नहीं करते हैं। अब किसी को कोई बीमारी यदि रहे और या तो टीका यदि लग जाए, कोई दिक्कत है क्या? जी हेलो जी, वही पूछ रहे हैं। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना यही चाह रहे हैं कि कोई टेस्ट तो किया नहीं। अच्छा, यदि कोई बीमारी हो और वो या इंजेक्शन जो लग गया तो कोई दिक्कत होगा बाद में क्या? इंजेक्शन मतलब आपने टीका लगवाया है, आपने वैक्सीन लगवाई है? जी वैक्सीन वैक्सीन लगवाई है और सावधानियां पूछना चाहते हैं। तो डॉक्टर मंडल, आप इनका जवाब दें और इन तरह के बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में इस तरह के सवाल होंगे, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं। जी देखिए, किसी भी तरह के लोग को वैक्सीन लिया जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, जिसको रिएक्शन हो, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन का हिस्ट्री हो या रिएक्शन हो, वैसे ही लोग सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए एहतियात बरतना है। बाकी किसी भी बीमारी में वैक्सीनेशन लिया जा सकता है, बहुत सेफ है। और वैक्सीनेशन के बाद ये ध्यान रखना है कि अगर हल्का उनको दर्द हो सकता है कि हल्की बुखार हो, जॉइंट पेन हो, ये सब छोटी मोटी चीजें 24 घंटे 48 घंटे हो सकती है। इन सब में पैरासिटामोल एक ही दवाई है जो लिया जा सकता है अगर होता है तो, और नहीं होता है तो एहतियात बरतना है और देखना है कि कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उनको सेंटर पे हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, या तो नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। जनरली लेकिन कुछ होता नहीं है, और जो भी दिक्कत है आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है उनको। आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ नहीं हुआ तो जनरली होता नहीं है, कोई डरने की बात इनको नहीं। Okay. We have more questions coming in on Facebook. Supriya Raj is asking that her father, who's 62 years old, got his first dose on the 19th of March. He got COVID on the 23rd of April, a little over a month later, but recovered by the end of April, but is still feeling fatigued post-COVID, and his sugar level is also rising. Now, should he take the second shot at this stage or not? Dr. Bikram Chaudhary. Yeah, so what I could gather from your query, from her query, was that there's been COVID, there's been a first dose taken. Within a month, the patient had COVID, and thereafter the patient is having fatigue with sugars rising. So as of today, can the patient take a second dose? That's the query. If I can. That's right. Yeah. So he can go ahead and take the COVID vaccine without any problems. In fact, it's imperative that he takes the COVID vaccine because, especially in diabetics, the second dose of COVID helps the patient's immunity remain boosted at a high level. And in fact, even after the first dose, the COVID that he had contracted would have been much lesser in severity and in morbidity to the patient than it would have been if he had not been vaccinated. We are still data is coming in as regards to how much morbidity COVID vaccines, even the first dose, prevents. But it has been generally observed that even a first dose COVID patient thereafter often has much less complaints, which are rather less severe symptoms. And if once they recover, they are supposed to take the second dose at the suited time. In this case, generally speaking, 2 weeks to 3 weeks after this COVID, 15 days of COVID, thereafter around 2 weeks later, the patient could have taken it when the duration given was 4 weeks. Now it's 6 to 8 weeks. So easily the individual can take it now. There is just no problem. बिल्कुल, और सवाल हमारे साथ लगातार आ रहे हैं। सुनील कुमार हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं और डॉक्टर सूर्यकांत से इन्होंने स्पेशली एक सवाल किया। इनका कहना है कि इनका कोरोना आज पॉजिटिव आया है और इनके लंग से थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है
और जिससे कि सांस पहुंचने में इनको दिक्कत हो रही है, इनका ऐसा लिखना है। और वो बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि ये पोस्ट टीबी इनका डिजीज है, टीबी इन्हें नहीं है लेकिन पोस्ट टीबी सीक्वल है। तो बहुत लंबा सवाल किया है, लेकिन शॉर्ट में डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि अगर टीबी इन्हें नहीं है और पॉजिटिव होने के बाद इनको लंग्स से अगर ब्लड आ रहा है तो इनको क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए? देखिए, कोविड होने के बाद अगर आपको ब्लड आ रहा है तो दो संभावनाएं हो सकती हैं जो आपको आपके डॉक्टर ने भी शायद बताई हैं। एक तो पोस्ट कोविड सिक्वली हो सकता है, यानी कोविड होने के बाद लंग में थोड़ा जो निमोनिया हुआ था, थोड़ा जो फाइब्रोसिस हुआ था, उससे ब्लड आ सकता है। या हो सकता है कि पहले कभी आपको टीबी रही हो और पोस्ट टीबी फाइब्रोसिस रही हो, जिसके कारण भी अब ब्लड आ सकता है। तो देखिए, ऐसा है कि इस सिचुएशन में आपको एक नया एक्सरे या सीटी डॉक्टर की सलाह पे करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ बलगम की जांच भी करानी पड़ेगी। बलगम में हम टीबी की जांच कराएंगे, स्पुटम फॉर एएफपी कराएंगे, स्पुटम फॉर सीबी नेट कराएंगे। और अगर बलगम में टीबी की जांच आती है तो हो सकता है कि पुरानी टीबी वो सक्रिय हो गई हो, या अगर टीबी की जांच नहीं आती है तो फिर ये पोस्ट कोविड सिक्वली हो सकता है या पोस्ट ट्यूबरकुलर सिक्वली हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये निर्भर इस पे करता है कि बहुत पहले कभी आपने टीबी का इलाज लिया है या नहीं लिया है। अगर इलाज लिया है पहले कभी तो ये पोस्ट टीबी सिक्वली है, और अगर कोविड के बाद ही ब्लड आने लगा है तो ये पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है। दोनों स्थिति में डॉक्टर की सलाह आपको लेना जरूरी। ओके, वी हैव अ कॉलर ऑन द लाइन। राहुल इज कॉलिंग अस फ्रॉम मधेपुरा। राहुल, आप अपना सवाल कीजिए। जी 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 राहुल जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना, हम आपको सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं सर। बहुत सारे 20-25 दिन से कुछ खा रहे हैं, कुछ चीज का स्वाद नहीं लग रहा है। अच्छा, फिर और जांच भी कराए सरकारी हॉस्पिटल से, उसमें निकला नेगेटिव सर। हाँ, आपने टेस्ट करवाया अपना कोरोना का? जी तो रिजल्ट आ गया उसका? जी, रिजल्ट आया तो नेगेटिव आया सर। करार भी पिए, कहाँ ठीक हो रहा है। ओके, डॉक्टर मंडल, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल हिम? नहीं, ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने टेस्ट आरटीपीसीआर कराया है या किट से टेस्ट कराया है। अगर किट टेस्ट कराया है तो आरटीपीसीआर टेस्ट होना जरूरी है। और आज की डेट में अगर किसी को स्वाद नहीं लग रहा है या उसको सुगंध नहीं आ रही है नाक में, तो बहुत सारे चांस है कि कोरोना हो, और कोरोना के लाइन पे ही ट्रीट करना जरूरी होता है। तो इन्हें माइल्ड फॉर्म ऑफ कोविड का चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से इनको कोविड की ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए और साथ में टेस्ट भी दे देना चाहिए, ताकि अगर ये बीमारी कोविड है तो आगे नहीं बढ़े। कंट्रोल करना जरूरी है। अपना सैचुरेशन मॉनिटर करते रहें पर डे, और टेम्परेचर मॉनिटर करते रहें। अगर सैचुरेशन गड़बड़ाता है या टेम्परेचर गड़बड़ाता है तो नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर होगा वहां जाना पड़ेगा इनको और ट्रीटमेंट लेनी होगी। ये मधेपुरा बिहार से हैं तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज में भी जाके ये टेस्ट करा सकते हैं, वहाँ पे इनके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। ओके, उम्मीद करते हैं राहुल इस एडवाइस को आप फॉलो करेंगे जो डॉक्टर साहब ने आपको राय दी है। सबसे पहले तो आप आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएं और उसके बाद जो नतीजा आए वो तो आप देखें ही, लेकिन इस दौरान भी आप अपने आप को कोविड पेशेंट मान के ही अपने आप को आइसोलेट करें और उसी हिसाब से अपने आप को रखें। बाकी डॉक्टर से सलाह लें जैसे जैसे आपकी तबीयत आपको बताती है कि आपके साथ क्या और तब्दीलियां हो रही हैं। बिल्कुल, और इस तरह की बहुत सी जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है या प्राइमरी जो टेस्ट कराते हैं वो नेगेटिव आता है, लेकिन सिम्टम्स जो होते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं। तो रीटेस्ट कराने में या फिर रीचेक कराने के बीच का जो एक अंतराल होता है उसके अंदर मरीज जो है वो सीरियस ना हो, वो क्या क्या कर सकता है उस दौरान और किस तरह से जो अपनी चिंताएं हैं उनका समाधान पा सकता है? डॉक्टर विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे। मैडम, एक्चुअली ऐसा है कि अगर पेशेंट का आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव भी आ गया, आज के दिन अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम है जो कि रिलेटेड टू कोविड है, जैसे कि अभी पिछले कॉलर ने कहा कि उन्हें टेस्ट नहीं आ रही है ठीक से, तो ऐसे सारे के सारे पेशेंट को जो भी सिम्टम है, जैसे बुखार भी है, तो आज के दिन में आरटीपीसीआर चाहे नेगेटिव हो या ना हो, पेशेंट को हम कंसिडर करते हैं एज कोविड पॉजिटिव। अच्छा, अगर कोविड पॉजिटिव है, सिम्टम्स कम है या ज़्यादा है, डजेंट मैटर, आपका अपना होम आइसोलेशन होना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है। और होम आइसोलेशन के साथ साथ
आपको अपने सेहत का ख्याल रखना है और एक पल्स ऑक्सीमेट्री जरूर अपने पास रखें। रेगुलर पल्स ऑक्सीमेट्री से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करते रहना है। अगर इससे आपका वैल्यूज 90 से कम हो रहा है, उस वक्त आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है, मुझे तुरंत मेडिकल अटेंशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपका 92, 93, 94, 95 तक है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अपने आप धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाएगा। जैसे 90 से कम हो जाती है, तुरंत हमें पेशेंट को तुरंत चले जाना चाहिए हॉस्पिटल में आगे के मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट 90 पे है और 89 पे है और फिर सडनली डिसैचुरेट हो जाता है और सैचुरेशन लेवल बहुत जल्दी फॉल हो जाती है। उस वक्त मेडिकल अटेंशन बहुत इमीडिएटली चाहिए होता है पेशेंट को। इसीलिए 90 से कम होने के लिए वेट ना करें और तुरंत चले जाएं। बाकी जो सिम्टम्स है कोविड की, उसके लिए नॉर्मल चीजें हैं, स्टीम इनहेलेशन, कोई एक बार फ्लू के जैसे कि किसी और कॉमन कोल्ड के जैसे सिम्टम्स होंगे, जैसे को स्टीम इनहेलेशन लेना, हो सकता है गरारे लेना, पैरासीटामोल के टैबलेट लेना, इसी से घर पे होम आइसोलेशन में पूरा हो जाता है पेशेंट। उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है। जो टेस्ट सेंसेशन या स्मेल सेंसेशन की बात हो रही है, वो अक्सर 3-4 हफ्ते लेता है वापस आने में। धीरे धीरे आता है कि पेशेंट कोविड नेगेटिव है, पेशेंट अभी कोविड ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, फिर भी पेशेंट का ये टेस्ट सेंसेशन और स्मेल सेंसेशन वापस तुरंत नहीं आता है, काफी दिन लगता है, कभी कभी महीना भी लग जाता है वापस आने में। उसके अलावा जब पेशेंट का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है, उसको वो रिपीट भी कर सकता है एक बार। जिस अगर बहुत डेफिनेट है कि पेशेंट को कोविड है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया है, एक बार उस वक्त रिपीट करके हम देख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव करने के लिए कोई RT-PCR की जरूरत नहीं है कि पेशेंट 15 दिन बाद पेशेंट ठीक हो गया, आइसोलेशन हो गया पेशेंट का, उसके बाद दोबारा RT-PCR कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 डेज हो गया है, पेशेंट अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में चले जा सकता है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि कोविड आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको फिर भी फेस मास्क पहनना जरूरी है। और आपके साथ साथ जो हैं आपके, उनको भी फेस मास्क पहनना जरूरी है। तो ये मास्क पहनना, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आपको मेंटेन करना है, चाहे आप कोविड नेगेटिव भी हो तो। आपको 15 दिन पहले कोविड हो गया है फिर भी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है प्रिवेंट करना कि आपको दोबारा कोविड ना हो। जी, ऑलराइट, we've got more questions. Tribhuvan Kumar Roy बता रहे हैं, he is asking that his daughter is 34 years old and she got her first vaccination dose 2 months after recovering from a COVID infection, but the same day she developed 100 degrees centigrade fever, vomiting and headache, and her pulse rate shot up to 120. Today is the third day after she got her vaccine and she's feeling better. But he wants to know, why did the pulse rate go as high as 120, Dr. Suryakant? Actually, mild symptoms and even rate, because if the fever is there, of course, pulse rate can go high. Because pulse rate is already in correlation with the temperature. If temperature goes more than 100, of course, pulse will also go more than 100. So that's why probably she had the 120 pulse. So it was just because of the vaccination. It is not because of anything, because they all subsided within 24 to 48 hours. So nothing to worry. It was just a mild reaction to the vaccination. कोई चिंता करने की बात नहीं है। और लगातार सवाल जो हैं हमारे दर्शकों के आ रहे हैं। अनिरुद्ध खजूरिया हमसे पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन ही एक सोल्यूशन है अगेंस्ट द कोविड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, इसके और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? डॉक्टर मंडल, आपसे जानना चाहेंगे इनका जवाब। वैक्सीनेशन तो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाना है और लंग एक्सरसाइजेस करनी है, प्रिवेंशंस रखना है। इसके अलावा ये पूछते हैं क्या करना चाहिए? फल लेना है इनको, फल काफी इम्यूनिटी देता है, और हाई प्रोटीन डाइट रखनी है, और एक्सरसाइजेस करना, लंग एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं। और बाकी जो प्रोटोकॉल कोविड का है, जैसे हाथों की सफाई, मास्क पहनना, दूरी, लोगों से नहीं मिलना, ये तो फॉलो करना ही करना। लेकिन प्रिवेंशन पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और इम्यूनिटी बढ़ाने की बात होनी चाहिए। ये दोनों करने से इन्हें बचाव या सुरक्षा मिल सकता है। Okay, let's take another question from our Facebook page. Raju Abraham is asking that he experienced some burning sensation within 30 minutes of taking the Covishield first dose. This was on the 6th of May, around 12 o'clock in the afternoon, around noon, and experienced some breathlessness after 4 days during the night.
Now he's wondering if he should take the second dose or not. Dr. Chaudhary. Yeah, so he basically had burning pain locally, which is okay. For a while he had it. The question of the breathlessness after 4 days, I'm not so sure we can relate it directly to the vaccination, because the vaccination reaction occurring after 4 days is pretty much unlikely. Having said that, he really needs to interact with his local medical practitioner and have a thorough checkup whether he is suffering from any other systemic diseases. That is probably what it is. I will just add here to an answer to what you asked before as well, and it is valid here as well, because there are many systemic infections which are present in individuals, and each of these systemic individuals also predisposes these patients to COVID. Okay. So, for example, a diabetic, for example, a person with any other systemic illness like tuberculosis, which is producing a lessening of their immunity levels, they have to get their systemic disease under control. This is quite apart from the vaccination protocol, quite apart from everything else, which is preventive of COVID. They have to get their systemic illnesses under control. We are getting regularly diabetics with a sugar level of 350, 400, completely uncontrolled, and then they're getting COVID and then landing up with mucormycosis to us. So basically, the sugar control in these cases has to be optimal, completely optimal. Suboptimal sugar controls means you're risking yourself even after taking multiple precautions. Even if you take immunity boosting substances, you will still have poor immunity, you'll still develop COVID. And maybe in the gentleman here who's asked the question has some other illness. Okay. May have been a transient flu, may have been a systemic illness he doesn't know about. Again, 4 days later, extremely unlikely to be due to the vaccination, and he should go ahead for a second vaccine as well. All right. और नवीन हमारे साथ तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आप पूछिए अपना सवाल। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, एक क्वेश्चन मेरे पापा के लिए है सर। ये 3-4 इयर्स बैक तो पापा को पैर में इन्फेक्शन हो गया था और पापा को शुगर बीपी 2 भी है सर। अभी थोड़ा इचिंग कंटिन्यूस होते रहता है सर। वैक्सीन अभी ले सकते हैं या बोल तो सजेशन आप कुछ वैक्सीन के बारे में दे सकते हैं हमें? डॉक्टर सूर्यकांत, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? फीवर है किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, तो उस दिन आप वैक्सीन जी। डॉक्टर सूर्यकांत की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। Dr. Bikram Chaudhary, if you got that question, could you respond? I missed out on part yes. of it. Your patient is having some problem, but it is controlled, stabilized. Then of course you can take the vaccination. डॉक्टर विक्रम, आप भी बताना चाहते हैं इस बारे में? I completely agree with him that if the patient has any problem, in this particular case is a diabetic, and the patient doesn't have fever or any other illness on the day of the vaccination, he can definitely go ahead with the vaccination protocol. There is just no problem. However, if he's having a systemic illness at that particular time, let's get that systemic illness under control and then go ahead with the vaccination protocol. Okay, another short question. Mantosh Chaudhary wants to know, can a person having urticaria, it's spelled as URTICARIA problem, take the vaccine? Dr. Mandal, if you could respond. Yes, he can have, but he has to be very careful that there is no problem post-operatively. If he has any reaction, any complication, then he should immediately, visit the nearest center after any problem. So, but yes, he has to be very careful. A patient of urticaria receiving this injection has to be very careful. Okay, we have more questions related to vaccination. Prem Kumar Sharma wants to know, is it okay to take a different vaccine as a second dose? Dr. Suryakant, if you would like to inform. No, it's not recommended that you can take the second type of vaccination during the second days. The ideal recommendation is if you have taken Covishield as a first dose, the second dose should also be the Covishield. And if you have taken the Covaxin as the first dose, then of course second dose should be the Covaxin. You can wait if the same vaccine is not available. You can change the center if the vaccine is available in a different center. That you can do. You can change the center, you can change the city, you can change the state, anything you can change. But you cannot change the, of course, type of vaccine. Okay.
तो एक Thank you. ही तरह की जो Yes, वैक्सीन है it's जो nice to फर्स्ट hear from a डोज ली Corona है Task Force वही member for the सेकेंड moment डोज that लेनी the चाहिए। same vaccine has to be taken. बिल्कुल। और लगातार इस तरह के जो सवाल हैं वैक्सीनेशन से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित हमारे पास आते रहते हैं। और जिस तरह से अभी विभिन्न दर्शकों ने हमसे पूछा है कि उन्हें कुछ कुछ बीमारियां थी तो उनको लग रहा था कि क्या उस ड्यूरिंग दैट पीरियड वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। कोविड होने के बाद कितने समय बाद जो है कोई भी व्यक्ति अपना टीकाकरण करा सकता है, हालांकि इसके बारे में गाइडलाइंस हैं। लेकिन डॉक्टर मंडल, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान इस बारे में भी हो पाए। नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लेना मस्ट है और वैक्सीन लेने से ही सुरक्षा मिल सकती है जी। इसलिए वैक्सीन लेने में कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, ये है कि जिन्हें सिर्फ एनाफिलैक्टिक रिएक्शन का प्रॉब्लम हो वही एक व्यक्ति हो सकता है जिसे अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी हर तरह के लोग वैक्सीन ले सकते हैं और कहीं लेने में कोई कठिनाई नहीं है। हर जगह वैक्सीन दिया जा रहा है, वो विलेज लेवल से लेके अब टाउन लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हर जगह वैक्सीनेशन मौजूद है। बिल्कुल, ये एक सुरक्षा कवच है और इसको लेना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी से संबंधित जो है लोगों के सवाल बार बार आते हैं कि किस तरह से वो ले सकते हैं, किस दशा में वो नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड से रिकवर होने के बाद कितने समय बाद जो है टीकाकरण कराना चाहिए? हालांकि गाइडलाइंस है लेकिन फिर भी भ्रम की स्थिति एक बनी रहती है। और जो ये एक टाइम पीरियड दिया जाता है, ये किस वजह से दिया जाता है? देखिए, ऐसा है कि कोविड वैक्सीनेशन जो प्रोटोकॉल है, कोविड डिजीज होने के बाद भी हम जनरल प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज बेसिकली कोविड होते वक्त उसी ड्यूरेशन के टाइम हम पेशेंट को वैक्सीनेशन नहीं देंगे, बिकॉज एक्टिव डिजीज है पेशेंट को। पेशेंट को एक्टिव डिजीज खत्म होने के बाद हम अपना नॉर्मल प्रोटोकॉल पे वापस आ सकते हैं। इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है इसके मामले में। सेकेंड डोज देना ही है पेशेंट्स को, चाहे कोविड हो चाहे ना हो। एक्टिव डिजीज के टाइम पे हम पेशेंट्स को वैक्सीनेशन नहीं देंगे। और वो एक्चुअली ट्रू है नॉट ओनली कोविड, किसी भी बीमारी के लिए। अगर पेशेंट को कोई भी और सीवियर इलनेस पेशेंट को हो गया, उस वक्त हम पेशेंट को वैक्सीनेशन नहीं देंगे। पेशेंट की रिकवरी के बाद आप जैसे आपको स्लॉट मिलता है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद, कभी कभी स्लॉट 2 वीक्स बाद मिलता है, या तो आपका जब ड्यू है सेकेंड डोज, जो भी आपका फर्स्ट आता है उसमें आप जाके अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि वैक्सीनेशन आपको पॉसिबल जब है तुरंत आप ले लीजिए, आपके रिकवरी के बाद। Okay, we have a caller from Gurugram, Jaipali. Go ahead, Jaipali, please ask a question. Good afternoon to you all. I have 2 questions. One is that she tested COVID positive, and after that I want to know for will go in for her. She has got no vaccination so far because she was not eligible at that time. And for how long, after how many months can she go in for the vaccination? And at that time also, does she have to take any particular medicine as a precaution? Because from what I hear is anticoagulant, that thing you have to take even when you take the vaccination after you have tested positive. And my second question is that both my doses, but my information is been fed wrong in my there was some mix up. Now I do not know, I have no certificate to say that I have got my vaccinations. How do I go about to correct it? I have got everything in the name of my husband and not in my name. Okay, I'm not sure if the doctors can help you here, but we'll ask them about correcting the record and getting the certification, because you're saying that you haven't got it as yet and you have no proof that you got vaccinated. Dr. Suryakant? Yes. So after the COVID infection, when there is a complete recovery, so you can wait for 12 weeks. Because after the natural infection, these antibodies which you develop after the natural infection of the COVID-19, the antibody persists at least for the 12 weeks. तो 12 हफ्ते का अंतर कर सकते हैं आप जब आपको कोविड हुआ है और आपको वैक्सीन लगवाना है तब, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन से जो वैक्सीन डेवलप हो रहा है 12 हफ्ते तक रहता है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि इनको कंफ्यूजन है कि इनका श्योर नहीं है कि कब हुआ है कब, तो आपको डेट तो याद होगा कि आपका वैक्सीनेशन कब हुआ है।
तो अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो अब आपको 12 वीक का अंतर फर्स्ट और सेकंड डोज के में रखना है। अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो 4 हफ्ते का अंतर रखना है। तो इतना तो भाई आपको याद होगा कि आपने कौन सी डेट को वैक्सीन लगवाई और कौन सी वैक्सीन लगवाई है। तो अगर कोविशील्ड लगवाई है तो आपको फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में 12 हफ्ते का अंतर रखना है। अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो पहले और सेकंड डोज के बीच में 4 हफ्ते का अंतर रखना है। बिल्कुल। और वैक्सीनेशन से संबंधित जी मैं बताना चाहूंगा इसको, ये अपने सेंटर पे जाके अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर अगर देंगे वहां, तो इनको डेट पता चल जाएगा किस डेट पे इनका वैक्सीनेशन हुआ। वहां रिकॉर्ड सारे रहते हैं। इनको अपना मोबाइल नंबर जो उन्होंने फीड करवाया था और आधार नंबर, ये दोनों अगर सेंटर पे देंगे तो एक्चुअल डेट किस डेट को इनका वैक्सीनेशन हुआ वो भी पता चल जाएगा। ओके ओके, बिल्कुल। एक और सवाल टीकाकरण से संबंधित ही हमारे पास आया है। रवीश त्यागी पूछते हैं कि इन्होंने अपना पहला डोज टीकाकरण का दुबई में लिया था 10 मार्च को। उसके बाद ये कहते हैं कि ड्यू टू शटडाउन और सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स ये दोबारा वहाँ नहीं जा पाए। तो इनका कहना है कि मैं सेकेंड डोज जो है इंडिया में ले सकता हूँ क्या? एस्ट्राजेनेका इन्होंने लिया था। डॉक्टर सूर्यकांत, आप बताना चाहेंगे? जी, क्या पूछा इन्होंने? मुझे समझ नहीं आया आपका आवाज। इन्होंने कहा कि ये दुबई में थे और पहला जो डोज था वैक्सीन का इन्होंने 10 मार्च को दुबई में लिया था, लेकिन कुछ विभिन्न कारणों से ये दोबारा वहां पर नहीं जा पाए। तो दूसरा डोज क्या ये इंडिया में ले सकते हैं? एस्ट्राजेनेका इन्होंने लिया था। एस्ट्राजेनेका का लिया था, बिल्कुल यहाँ पर कोविशील्ड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्ट्राजेनेका की ही टेक्नोलॉजी का हमारे देश में कोविशील्ड बना हुआ है। सेम टेक्नोलॉजी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। एस्ट्राजेनेका ने उसके लाइसेंस लिए हुए हैं और एस्ट्राजेनेका के साथ एमओयू हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, जिसने कोविशील्ड बनाई है। तो बिल्कुल ले सकते हैं ये सेकेंड डोज। कोविशील्ड में 12 वीक्स का अंतर रखना है और किसी भी सेंटर पर ये कोविशील्ड ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके लिए इनको दोबारा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। Okay, we have more questions coming in on Facebook. Sandeepa Das is saying that she is diabetic and 44 years old, and to boost her immunity she had been taking Zinconia and vitamin C for the last 5 to 6 months. Now should she continue with her vitamins and supplements, or should she stop it at this stage? Dr. Mandal. She has to continue these things because she has comorbidity, that is diabetes, and all diabetic patients are prone to secondary infections and COVID infections. So immunity is very important for us and for them. So in any case, she has to boost her immunity and she should continue these medications. Apart from that, whatever foods are available should also be taken to boost up further her immunity. Okay. बिल्कुल। और वैक्सीनेशन के बाद के प्रभावों से संबंधित एक सवाल हमारे पास है। नीरज कुमार शर्मा फेसबुक से हमसे जुड़े हैं और उन्होंने ये सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि इनके एज 52 है और 45 दिन पहले इन्होंने टीकाकरण कराया था और ये कहते हैं कि तब से इन्हें दर्द है, इनके हाथ में जो है वो काफ़ी दर्द है जब भी ये हाथ मूव करते हैं। और इनका ये पूछना है कि क्या ये कोविशील्ड की वजह से है और ये जो पेन है उनका काफ़ी बढ़ गया, तो इससे संबंधित ये जानना चाहते हैं कि क्या ये उसकी वजह से है और अगर ये सीवियर होता है तो इनको क्या करना चाहिए? डॉक्टर बिक्रम। देखिए, इंजेक्शन लेने के 1 मंथ बाद या 40 डेज बाद जो ये कह रहे हैं, अभी भी अगर उनको लोकल पेन हो रहा है तो पहली बात तो हमें चेक करना है कि ये पेन मसल में है या ये पेन मूवमेंट पे होता है या पेन इनके मूवमेंट पे बताते हैं। हाँ, तो हो सकता है मस्कुलर पेन हो सकता है जॉइंट रिलेटेड पेन हो। अभी ये पेन अगर वो रिलेट कर रहे हैं वैक्सीन के इमीडिएटली बाद से तो 1 मंथ तक है, तो आई थिंक उन्हें अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलना चाहिए कि कुछ और लोकल प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी होता है, किसी रेयर केस में लोकली इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू द वैक्सीनेशन, खास करके अगर पोस्ट वैक्सीनेशन उन्होंने केयर नहीं लिया हो और वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो इन्फेक्शन की वजह से लोकल छोटा एब्सेस हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही हो और जो कि ठीक नहीं हुआ है और उसको उन्हें दिखाना पड़ेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर को जाके। मैं श्योर नहीं हूँ ये वैक्सीनेशन के साथ रिलेटेड है, बट जस्ट इन केस है तो फिर उन्हें दिखाना चाहिए। एनी केस अगर 1 महीने से उन्हें मूवमेंट में पेन हो रहा है, उन्हें अपने डॉक्टर को जरूर जाके दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि इनको पेन स्टार्ट वहीं से हुआ जहां पर इनको इंजेक्शन लगा था।
तो इन दैट केस ऑल्सो अभी उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, बिकॉज हो सकता है वहाँ पे एक लोकल छोटा एब्सेस हो। हम नहीं कह सकते एग्जामिन ना किए उन्हें किए बिना, बट मुझे सस्पिशन है इनके बात से कि हो सकता है लोकली थोड़ा सा कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके लिए उन्हें अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी से मिलनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, पेन रिलीफ हो, कुछ जो भी मैनेजमेंट हो वो उनको देख के ही कर पाएंगे। ओके, कुछ और सवाल आ रहे हैं। अनिल मेहरा इज सेइंग दैट ही इज 44 years old and after 14 days of isolation he's got his RT-PCR done and it's still positive. He's got a second RT-PCR done on the 24th of May which again turned out to be positive. So, and he doesn't have any symptoms now. So he's asking, should he still stay in isolation, or is he okay to move around while taking all the precautions that one is supposed to in these times, Dr. Suryakant? Should I answer this? जी. Actually, I don't know who has advised for the first or second test after the home isolation. During the home isolation, you need not to go repeated RT-PCR test. Only those patients who are admitted in ICU, their only recommendation is that yes, you can repeat the test of RT-PCR. Otherwise, patients having mild symptoms or even asymptomatic cases who have been in isolation, home isolation, they don't require the test. Even though if they have done, it doesn't mean anything. If the patient is asymptomatic, not having any problem, so whether the RT-PCR comes positive or negative doesn't mean anything. Most of the time, the DAD viruses, they continue to shed from the, of course, bronchial tree, and that's why RT-PCR test is positive. It doesn't make any sense, or it doesn't signify that patient is infectious, or patient is having disease, active disease, or patient can spread the disease. So this home isolation can be stopped as per the norms. There is no further need of home isolation and no further testing also. Right. We have another person. Government has already given guidelines. There is no need of any retesting. Okay. And if patient is asymptomatic, he has to just isolate himself, take the necessary precaution for 14 days, and then he has to be back to work. Yes, I hope that clarifies the situation for many people. We've got Dinesh on the phone line from Rohtak. Go ahead, Dinesh. Please ask your question. नमस्कार डॉक्टर साहब, 5 दिन पहले मैंने कोवैक्सीन का सेकंड डोज लिया है। मैं बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन कल इवनिंग से मेरे को फेस पे हल्का हल्का कुछ स्वेलिंग सा हो गया और रेडनेस सी है, इसमें हल्की हल्की इचिंग भी हो रही है मुझे। Okay, Dr. Mandal, would you like to respond? Yes, मुझे लगता है कि अनरिलेटेड चीज है, इससे रिलेटेड होनी नहीं चाहिए, और इनको नियरेस्ट सेंटर पे जाके या स्किन स्पेशलिस्ट से ऑनलाइन भी आजकल कंसल्टेशन होता है, व्हाट्सएप कॉलिंग से भी हो सकता है, ये कंसल्टेशन करनी चाहिए। ये अनरिलेटेड चीज होनी चाहिए, वैक्सीन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। I would like to just say one thing here, that the individual should first find out his sugar status, his blood sugar status, because even if he's not, he's taken his vaccines, if he's a diabetic who is not controlled, he may very well be showing the initial signs of mucormycosis. Okay. Which is something he has to rule out, especially now that we are having a literal epidemic of mucormycosis in our country. These symptoms of facial pain and facial swelling could possibly be due to mucormycosis, and that's why he needs to get his sugar tested, and he has to show it at the emergency as fast as he can, as soon as he can. बिल्कुल, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। अंशुल सक्सेना हैं, वो फेसबुक से जुड़े हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोविड रिकवरी के बाद इरेगुलर पल्स रेट की समस्या से ये जूझ रहे हैं। 13 अप्रैल को ये कोविड पॉजिटिव हुए थे, तो उसके बाद से रिकवर होने के बाद से लगातार इनका पल्स रेट इरेगुलर है, और ये कह रहे हैं कि 132 टू 45 के बीच में है। ईसीजी इनकी नॉर्मल है, तो इनको क्या करना चाहिए और इसकी क्या वजह है? डॉक्टर सूर्यकांत, आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये पोस्ट कोविड, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए, पोस्ट कोविड के बाद एक्चुअली मोर देन 50% केसेस को थोड़ी बहुत इस तरह की समस्याएं होती हैं जी, और तो इसलिए होती हैं कि उनको एक सदमे से गुजर गए हैं, तो बहुत बड़ा एक मेंटल शॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट होता रहता है, तो इतना फियर साइकोसिस होती है, इतनी एंजाइटी होती है, उससे पल्स बढ़ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली इनका भी जो पल्स बढ़ा हुआ है वो इसी एंजाइटी की वजह से बढ़ा हुआ है
फिर भी रीएश्योरेंस के लिए एक ये कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि ये एंजाइटी इंड्यूस्ड इनको टैकीकार्डिया है। इनका पल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा एंजाइटी के कारण बढ़ा हुआ है। इनको एश्योरेंस की जरूरत है, रीएश्योरेंस की जरूरत है। और लेकिन फिर भी अगर नहीं जाता है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन इनको ले लेनी चाहिए। Right. We're quickly taking a last question. Kriti Gupta is saying that her daughter is 16 years old. 1.5 months ago, she was tested positive of COVID, and she's also been diagnosed with sinusitis now, and she has symptoms of it for the last 10 days: low-grade fever, eye heaviness, weakness, nose blocked, and now she's developed pain in her teeth. Her SpO2 her level has been between 93 and 98. Now she's wondering if this could be mucormycosis. Dr. Chaudhary, if you'd like to tell her what the case might be. Yes, if she's a post-COVID recovery patient, the chances of it being mucormycosis are definitely there. In fact, I would rate it as like pretty high considering today's load of mucormycosis. Especially, we are finding that people who have been, the jury is still out on it, but generally we are finding people who have been prescribed steroids and zinc, too much of zinc, too much of steroids. We are finding these patients are developing mucormycosis post-recovery. So if the patient has especially been prescribed zinc or steroids early on, the chances of it being mucor are present. In any case, it is present, so like more likely. So she should definitely at the earliest go to the emergency and meet an ENT there so that they can have a look inside and see her nose and assess whether or not there is mucormycosis, especially the fact that she's got palatal pain and possible tooth involvement. That suggests definitively that it is not. I hope Kriti Gupta follows your advice. We're completely out of time. Sorry for interrupting, but I'm afraid we'll have to wrap up our show at this stage. Thank you so much for joining us today. All three of you, Dr. Suryakant, Dr. Chaudhary, as well as Dr. Mandal, and answering all the queries of our callers as well as those who've asked us questions on Facebook. बिल्कुल, और ये कार्यक्रम हम रोज़ लेकर आते हैं आपके सामने, और कोई भी आपका सवाल हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हिम्मत से, सावधानी से इस जंग को जीता जा सकता है और लगातार इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो यही अपेक्षा करेंगे कि आप प्रोटोकॉल का पालन करें, हिम्मत बनाए रखें और जो सावधानियां हैं उनको विशेष तौर पर पालन करते रहें, करवाते रहें, और डीडी न्यूज़ पर लगातार ये शो देखते रहें। इसी के साथ लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार। Have a great day ahead.